اور شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کریں گے۔ جموں کشمیر سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں سری نگر میں کورونا کے کیسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انتظامیہ نے کورونا کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سری نگر کے بعض حصوں میں 10 دنوں کے لیے کورونا کرفیو لگایا گیا ہے۔ کورونا کی کیسوں پر قابو پانے کے لیے کورونا کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے۔ تو اس وقت بڑی خبر جموں کشمیر سے آ رہی ہے جہاں پر کشمیر میں لگاتار کورونا کے کیسز میں پچھلے کچھ دنوں سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے چلتے 10 دنوں کا کورونا کرفیو لگایا جائے گا۔ آج رات 12 بجے سے کورونا کرفیو کا نفاذ ہو جائے گا۔ کورونا کے کیسوں پر قابو پانے کے لیے کورونا کرفیو انتظامیہ کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ تو جموں کشمیر سے اس وقت بڑی خبر جہاں سری نگر میں کورونا کیسوں میں اضافے کے چلتے انتظامیہ نے کورونا کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج رات 12 بجے سے ہی سری نگر کے بعض حصوں میں 10 دنوں کے لیے کورونا کرفیو لگایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو پھر سے بتا دیں کہ آج رات 12 بجے سے ہی اس کرفیو کا نفاذ ہو جائے گا۔ 10 دنوں تک یہ کرفیو چلے گا۔ سری نگر کے بعض اضلاع اور سری نگر کے بعض حصوں میں یہ کرفیو لگایا جائے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سری نگر اور اس کے آس پاس یہ یوں کہیں کہ کشمیر کے کچھ حصوں میں کورونا کے کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ ماہرین نے تشویش ظاہر کی تھی کہ جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں کہیں تیسری لہر کی یہ دستک تو نہیں ہے، اور اب جس طرح سے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انتظامیہ نے سری نگر اور آس پاس کے کچھ حصوں میں 10 دنوں کے کرفیو کا اعلان کر دیا ہے۔ آج رات 12 بجے سے ہی اس کرفیو کا نفاذ ہوگا۔ انتظامیہ نے کورونا کرفیو لگانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ دہلی میں آلودگی کی سطح بہت ہی خراب ہے۔ دارالحکومت کا ایئر کوالٹی انڈیکس گزشتہ 3 دنوں سے 400 کے قریب ہے۔ آج دہلی کا اوور آل ایئر کوالٹی انڈیکس 372 ہے، جبکہ کئی علاقوں میں یہ 400 سے تجاوز کر گیا۔ اس کی وجہ سے دہلی کے باشندوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ریڈ لائٹ آن گاڑی آف کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ آلودگی کو لے کر لوگ تشویش میں مبتلا ہیں اور شکایت کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے خرم شہزاد نے IOT علاقے سے پالیوشن کا جائزہ لیا۔ راجدھانی دہلی کے لیے ان دنوں آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف دھند سی بکھری ہوئی ہے، حالانکہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوہرا ہو، لیکن دراصل یہ فوگ نہیں بلکہ اسموگ ہے۔ اسموگ یعنی کہ دھول اور دھواں، یہ دونوں دہلی کی ہوا میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی سطح اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ان کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ اگر دیکھیں تو دہلی کی آب و ہوا کے اندر جس طریقے سے دھواں اور دھول کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں کا ٹریفک، کیونکہ ٹریفک کا ہی سب سے زیادہ کہنا چاہیے حصہ ہوتا ہے جس طرح سے فلاس غذائی آلودگی بڑھتی ہے۔ حالانکہ پڑوسی ریاستوں میں پرالی جلانے کو لے کر کے بھی یہ بات کی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ حصہ دہلی میں جو ٹریفک ہے، جو گاڑیاں ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی ریڈ لائٹ آن ہو تو آپ اپنی گاڑی آف کر دیں۔ اگر ابھی دیکھیں تو دہلی میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 372 ہے۔ دیکھیے کہ دہلی سرکار کی طرف سے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن حکومت ہند کا جو ایپ ہے سفر، اس کے مطابق یہ 372 اوور آل دہلی کا یہ ایک طریقے سے یہ جو آلودگی کی سطح ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ آلودگی کی سطح ہے۔ یہ دیکھیے لودھی روڈ پر 359 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے۔ اگر دیکھیں تو یہ جو مانا جاتا ہے کہ ویری پور کیٹیگری میں مانا جاتا ہے۔ سب سے اچھا جو ہوتا ہے 50 اور 100 تک ہوتا ہے، اس کے بعد ماڈریٹ 200 تک، پھر پور کی کیٹیگری ہوتی ہے اور 300 کے بعد ویری پور کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ دیوالی میں جس طریقے سے کریکرز پھوڑے گئے۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ بہوجن کرانتی مورچہ اور راشٹریہ مسلم مورچہ کی جانب سے اورنگ آباد کے ضلع کلکٹر کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ مورچے کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ تریپورہ میں حکم امتناع نافذ ہونے کے باوجود اقلیتوں پر مظالم کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرین کا الزام ہے کہ ریاستی حکومت کی سرپرستی میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم خاموش بیٹھے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ملک میں انارکیت پھیل جائے گی۔ مورچے کے ذمہ داروں نے فوری حالات پر قابو پانے اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से हिंदुस्तान के 550 शहरों में आज धरना दिया जा रहा है। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि त्रिपुरा में जो हालात है, वज़ीर आज़म साहब और गृह मंत्री खामोशी साधे हुए हैं। इसलिए हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप है तो त्रिपुरा के भी वज़ीर आज़म हैं, वो जो बेवा औरतें हुई है, परेशान हाल है, ऐसी हालत दूसरे शहरों में ना हो, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पर तवज्जो दें और अमन और कायम करें। त्रिपुरा राज्य में 144 लागू है। 144 लागू होने के बावजूद भी ऐसे हमले हो रहे हैं। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा आज पूरे भारत में यह निवेदन दिया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी मार्फत, क्या जो घटना घट रही है वो घटना को जल्दी से जल्दी लगाम लगाया जाए, अन्यथा इस देश में अराजकता मच सकती है। ऐसा होने से इस देश अशांतता फैल सकती है और इसकी वजह से देश को हानि हो सकती है। बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और तमाम सहयोगी संगठन ने आज पूरे भारत भर में 550 जिलों में और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 2000 से ज़्यादा ब्लॉकों में वामन मेश्राम साहब के आदेश पर आज हमने धरना आंदोलन किया है। और इसके बाद भी अगर प्रशासन उधर ध्यान नहीं देता है, वहाँ उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो हम इसके आगे भी इससे ज़्यादा धरने आंदोलन कर हम रास्ते पर आएंगे। और वामन मेश्राम साहब के आदेश पर, माननीय मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के आदेश पर, इसके बाद भी हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे। तो त्रिपुरा फसादात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग विमेंस विंग की जानिब से त्रिपुरा फसादात मामले को लेकर अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर को सदर जमहूरिया और वजारत खारजा के नाम एक मकतूब पेश किया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि कुछ शरपसंद अनासिर त्रिपुरा की फजा को खराब करने में लगे हुए हैं, इन शरपसंदों पर कार्रवाई की जाए। एहतजाजी मुजाहरे में त्रिपुरा और मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर विमेंस विंग की सदर अमरीन खान ने मोदी हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की खामोशी पर भी सवाल उठाया। Here to give an application to the president through your medium. Ma'am, whatever that is totally happening in Tripura, it is illegal. The people over there have brutally broken our mosques, killed many people, and are organizing rallies against our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, with the ladies, please forward our application to the respective president. त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई गई है, लोगों को मारा गया है। जिन लोगों ने कृत्य किया है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो मुसलमानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। मुख्तलिफ शोबे हयात में गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वालों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों 119 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। बाद अज़मर्ग मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण अवार्ड, मौलाना कल्ब सादिक को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। मौलाना कल्ब सादिक को बाद अज़मर्ग पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। मौलाना कल्ब सादिक की पैदाइश 22 जून 1939 को यूनाइटेड प्रोविंसेस के लखनऊ में हुई थी। इनकी शुरुआती तालीम सुल्तानुल मदारिस में हुई। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिल्लत की तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए वक्फ कर दी थी। डॉक्टर कल्ब सादिक अपनी हर मजालिस में जहालत के खिलाफ लड़ने के लिए आवाम को बेदार करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज में तालीम फराहम कराने के लिए सिर्फ जबानी जद्दोजहद नहीं की, बल्कि तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट कायम करके दूसरों के लिए नजीर भी पेश की। काबिल जिक्र है कि मौलाना कल्ब सादिक ने 1984 में तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट कायम किया, जिसका मकसद समाज के गरीब और बेसहारा बच्चे बच्चियों को तालीम याफ्ता करके समाज और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला बनाना है। मौलाना कल्ब सादिक ने हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी इत्तिहाद के लिए हमेशा कोशिश की। यही वजह है कि सभी मज़ाहिब और मकातब फिक्र में इज्जत और शोहरत हासिल की। इनकी जिंदगी में सादगी, आला अखलाक और खिदमत खल्क के लिए मौलाना को हमेशा याद किया जाएगा। सन 2015 में शोल्डर टू शोल्डर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शिया सुन्नी एक साथ नमाज अदा की, जिसमें सबसे बड़ा नाम मौलाना कल्ब सादिक का है। मौलाना कल्ब सादिक के अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान को भी बाद अज़मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया।
मौलाना वहीदुद्दीन खान मारूफ आलिम दीन और मुफक्किर इस्लाम रहे हैं। उन्होंने कौम व मिल्लत के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बेशबाहा खिदमत अंजाम दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दारुल उलूम देवबंद के जरिए उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात तक सियासतदानों के लिए दरवाजे बंद किए जाने के फैसले की सताइश की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा दीनियात के असातिज़ा और स्कॉलर्स का कहना है कि तालीमी इदारों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। इस ताल्लुक से दारुल उलूम देवबंद का यह फैसला बहुत अहम है। वहीं स्कॉलर्स का भी यही कहना है कि सियासतदानों की नो एंट्री वक्त का अहम तकाजा है। हालांकि बहुत से लोग सिर्फ दुआ के लिए भी जाते हैं। ऐसे में सभी से परहेज करना मुनासिब कदम है। मेरी राय यही है कि जहाँ कहीं भी इल्मी इदारे हैं उन तमाम इदारों को सियासत से दूर रखा जाए तो बेहतर है। देवबंद के इस कदम को तो मुस्बित अंदाज में मैं देखता हूँ कि देवबंद ने जो कदम उठाया वो सही कदम उठाया है। तो उन्होंने जो इस पर रोक लगाया है, मेरी राय तो यह है उस सिलसिले में कि उन्होंने इस सिलसिले में सही कदम उठाया है और ऐसा होना ही चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा कदम है ये दारुल देवबंद का। इसकी सताइश होनी चाहिए और इसकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा कदम उठाया। हो सकता है मिसयूज़ कुछ करें अपने फॉर्म मफाद के लिए, दोनों बातें हैं इसमें। कुछ कर भी सकते हैं, कुछ दुआएं उनके लिए भी आ सकते हैं। अंजुमन मुहिब्बान भोपाल के ज़ेर एहतमाम भोपाल की तहजीब और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भोपाल इकबाल लाइब्रेरी में मुनक्किदा प्रोग्राम में मुमताज़ दानिश्वरों और मौर्रिखीन ने शिरकत की और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। देखिए भोपाल से हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है। इस शहर पर 9 मर्द और 4 बेगमात ने हुकूमत की है, लेकिन नवाबी अजमत के नुकूश, हुकूमत और अपनों की अदम तवज्जोही के सबब एक एक करके मिटते जा रहे हैं। जिस भोपाल में कभी 16 तारीखी महल यहाँ की शान व शौकत के गवाह थे, अब इसी शहर में महल तो हैं लेकिन अदम तवज्जोही के सबब खस्ता हाली के शिकार हैं। राजधानी भोपाल में अंजुमने मुहिब्बान भोपाल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अजमत रफ्ता की गिरती हुई दीवारों को लेकर कुछ इस तरह से अपने फिक्र का इजहार किया। एक डूबते हुए शहर की मिटती हुई तहजीब है। जो हमारा तमद्दुन था, हमारा माशरा था, हमारी रसूमात थी, हमारे आदाब थे, वो सब ख़त्म कर दिए। मतलब ये और उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो यहाँ के हुक्मरान थे। एलीट क्लास जो था कि जो नुमाइंदा थे, संबल थे, एम्बलम थे, वो उन्होंने खुद मिटा दिया। मतलब ये सब अपने हाथ से किए। लेकिन फिर भी कुछ डूबता हुआ सरमाया बाकी है। उसको बचाने के लिए हर भोपाली को, जो बाकी भोपाली, और मैं जो हर रोज़ आदमी को जो भोपाल में आके बस गया भोपाली मानता हूँ मैं। तो मतलब मुहिब्बान भोपाल के ज़ेर एहतमाम इकबाल लाइब्रेरी में मुनक्किदा प्रोग्राम में दानिश्वरों ने न सिर्फ भोपाल की तारीखी इमारतों की शिकस्ता हाली के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया, बल्कि भोपाल की कदीम तहजीब और मुश्तरका तहजीब की पामाली पर भी अपनी तशवीश का इजहार करते हुए इसको बचाने के लिए मुश्तरका तौर पर बेदारी मुहिम चलाने पर जोर दिया गया। देखिए दरअसल है क्या, बद्रवास्ती ने एक मजमून लिखा था भोपाल पर, और मैंने वो मजमून पढ़ने के बाद इनसे कहा था कि ये सन 80 तक का भोपाल है। इसके बाद भोपाल बहुत तब्दील हो चुका है, क्योंकि भोपाल की कुल आबादी उधर तकरीबन 1 लाख रही होगी और अभी तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। तो बाहर से आने वाली जितने लोग थे उनकी तहजीबें यहाँ मिलकर ये भोपाल की ओरिजिनल तहजीब को यानी तकरीबन मस्त कर चुकी हैं। अब ये नई तहजीब है, भोपाल की वो तहजीब नहीं है। जबकि भोपाल की बहुत खूबसूरत तहजीब थी, गंगा जमनी तहजीब, मोहब्बतों की तहजीब। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये तहजीब बरकरार रहे, लोग इसकी रवायत की पासदारी करते रहें। कि जो पुरानी तहजीब की या पुरानी चीज़ें भोपाल की हैं वो कायम रह जाएं, और उसमें तहजीब के अंदर हमें पुरानी शख्सियात को याद करना पड़ता है। वो लोग कैसे थे, उन्होंने कैसे हमसे जमा किया। जो नवाबान थे या बेगमात थी, उनके अलावा भी तो शहर था। वो शहर की जो शख्सियात थी वो भी कीमती थी। भोपाल इकबाल लाइब्रेरी में मुनक्किदा प्रोग्राम में दानिश्वरों के जरिए भोपाल की कदीम तहजीब और कदीम तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर करारदाद भी पास की गई, जिसे वफ्द के जरिए महकमे आसार कदीमा और महकमे सकाफत को पेश करने का फैसला किया गया, ताकि भोपाल के अजमत रफ्ता का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके।
न्यूज 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मजलिसे रहबर हुज्जाज कमेटी यादगीर के कारगुजार सदर नवाब अहमद ने बताया कि दफ्तर रहबर हुज्जाज कमेटी वाक़ मदरसा काशिफुल उलूम मक्का मस्जिद यादगीर में हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का अमल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद सफ़र हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐलान के मुताबिक दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 मुकर्रर की गई है। दफ्तर का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे और 3 बजे ता असर तक रहेगा। के आज़मीन हजरात को इत्तला दी जाती है कि इस साल 2022 के हज के फार्म दाखिल होने शुरू हो चुके हैं। जो हजरात इस साल हज का इरादा रखते हैं वो हजरात मदरसा काशिफुल उलूम हज कमेटी मक्का मस्जिद हत्तीकुनी रोड पर आकर अपने फार्म दाखिल फरमाएं और फार्म दाखिल करने का वक्त 10 बजे से 12:30 तक रहेगा और दोपहर 3 बजे से असर की अज़ान। भोपाल गैस सानिहे को गुजरे हुए 37 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन अपने मसाइल को लेकर गैस मुतासरीन आज भी एहतजाज करने पर मजबूर हैं। अपने मुतालबात को लेकर गैस मुतासरीन 14 रोज से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इन 14 दिनों में हुकूमत के किसी जिम्मेदारान ने इनसे मुलाकात नहीं की। गैस मुतासरीन का कहना है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC गैस के जहर से हजारों लोगों की मौत हुई थी और आज भी लाखों लोग इसके मुज़िर असरात से दो चार हैं। हुकूमतें अपने शहरियों के मसाइल को हल करने के बजाय मल्टीनेशनल कंपनियों की तिजारत को फरोग देने में मसरूफ हैं। 30वीं बरसी पे गैस कांड के हमारे 37 सवाल को लेकर 26 अक्टूबर से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा आज का सवाल है कि 2011 में रेल रोको आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि हम गैस पीड़ितों को सही मुआवजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे और संगठनों को भी साथ ले जाएंगे। दूसरा सवाल था, जवाब था उनका कि वो यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है उसकी सफाई के लिए भी जांच कराएंगे और उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। और एक तीसरा सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट में सही आंकड़े पेश करेंगे और जो मिट्टी पानी की सफाई की जिम्मेदारी डाव केमिकल को दिलाने की बात करेंगे। लेकिन आज तक अभी तक एक भी सवाल 2010 से लेकर जो 2011 से 2021 हो गया है, 10 साल में एक सवाल भी उन्होंने पूरा नहीं किया है, जबकि उनकी खुद के हाथ की चिट्ठी लिखी हुई है। उनके लिखने के बाद ही हम पटलियों से उठे थे, लेकिन आज हमारा सवाल है कि ऐसा क्यों और अभी तक क्यों नहीं किया। मशहूर शायरा मीना नकवी को दिल्ली में याद किया गया। सबरस एकेडमी की जानिब से दिल्ली में यादे मीना नकवी के नाम से प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में मीना नकवी की 3 किताब गिरदाब, गुलाब मंजर और चिराग निस्बत का रस्म इजरा भी किया गया। इस मौके पर नुसरत मेहंदी, शहपर रसूल, खालिद महमूद और शेख नगीनवी ने अपने अपने अंदाज में मीना नकवी को याद किया। जो जलसा ये प्रोग्राम हुआ है ये डॉक्टर मीना नकवी के एजाज़ में या उन मरहुमा को याद करने के लिए उनकी 3 किताबें उनकी बहनों ने शाये की हैं। इन किताबें भी इत्तेफाक से मेरे हाथ में है इस वक्त। आप चाहें तो इन किताबों का भी चिराग निस्बत है किताब ये है और दूसरी किताब जो है वो गुलाब मंजर है, शेरी मजमुआ है ये, और तीसरी किताब भाई मीना नकवी साहिबा के सिलसिले में फारसी का एक जुमला कहा जा सकता है कि ई खाना हमा आफ्ताबस्त। इल्म अदब का ऐसा गैर मामूली ज़ौक़ उनके ख़ानदान में है। और 3 बहनें तो शायरा और दुनिया में जाती है। नुसरत मेहंदी जो इस वक्त बोल रही है, अलीना इतरत और बड़ी बहन मीना नकवी, वो इतनी किताबें उनकी शाये हुई है, बहुत कोना मश्क और बहुत सुलझी हुई शायरा वो थी। डॉक्टर मीना नकवी साहिबा एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनकी पूरी ज़िंदगी उर्दू ज़बान व अदब और हिंदी ज़बान व अदब दोनों के लिए डेडिकेटेड थी और जितने दिन ज़िंदा रही हैं आखिरी दिन तक उन्होंने शेर कहे हैं।
اور شعر بھی ایسے کہ جو آج کے دور کی شاعرات یا ہم جیسے لوگ جو ہیں اسے طالب علم کی طرح پڑھ کر ان استعارات اور ان علاماتوں کو پڑھ کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مینا نقوی کی جو شخصیت ہے وہ اردو ادب کی بڑی شخصیت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام صرف شاعری میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنی بھی شاعرات ہیں جن کا اتنا کام ہے۔ کرناٹک میں محکمہ اقلیتی بہبود کی کئی اسکیمیں بند ہو چکی ہیں۔ موجودہ بی جے پی حکومت نے اقلیتی محکمے کے فنڈز میں بھاری کٹوتی کی ہے۔ بنگلورو میں کانگریس کے رکن اسمبلی این اے حارث نے یہ بات کہی۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے اقلیتی شعبے کے نئے صدر عبدالجبار اور این اے حارث نے میڈیا سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ایم آئی ایم اور ایس ڈی پی آئی جیسی پارٹیوں سے ہوشیار رہنے کی مسلمانوں سے اپیل کی گئی۔ واضح ہے کہ 16 نومبر کو بنگلورو میں کانگریس کے اقلیتی شعبے کا ریاستی اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اقلیتی شعبے کے قومی صدر عمران پرتاپ گڑھی کی موجودگی میں کانگریس لیڈر عبدالجبار اپنے عہدے کا جائزہ لیں گے۔ بہت خراب ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تو یہ حالات سے ہمیں ان کو ہاتھ پکڑ کے اوپر لے کر آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کیا پروگرامز کرنا ہے؟ ابھی جب ہمارے گورنمنٹ حکومت تھا پہلے لاسٹ ٹائم، ہمیں بہت نیا اسکیمز لے کر آئے گورنمنٹ کا تھرو، اور وہ اسکیمز سے ہمارے لوگوں کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ ابھی وہ اسکیمز کو یہ گورنمنٹ سٹاپ کیا ہے، تو اس کے خلاف ہم لڑیں گے۔ ہم چپ بیٹھنے والوں میں نہیں ہیں، ہم گورنمنٹ کے خلاف لڑیں گے۔ اس کے لیے اسکالرشپ بند کرے ہمارا بچوں کا، ہمارا کالونی ڈیولپمنٹ کا پروگرام کا بجٹ بھی الوکیشن نہیں دیا، تو یہ ناانصافی ہے۔ تو یہ سب پوچھنے کے لیے ہم لوگ یہ پلیٹ فارم سے ہم کام کریں۔ ہمارا مین مقصد بھی وہی ہے، ہمارا جو ہے ایم آئی ایم، ایس ڈی پی آئی اور ایسے بہت سے ابھی آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے وہی سیم ایم آئی ایم ایس ڈی پی آئی کا کام نیکسٹ جو ہے جنتا دل والے کیے پرسوں، انہوں نے نہیں کیے، ان کی جگہ ان کا چارج انہوں لیے تھے پرسوں۔ اب انہوں کھڑا کر کے ہمارے کینیڈا گھرانا کر سوچتے تھے، اب انہوں کھڑا کرے تھے پرسوں۔ لیکن لوگ جو ہیں بہت دن تک یہ سب سنبھالتے نہیں، سب کو فیصلہ